ज्ञान विज्ञान। ਨਮਸਕਾਰ। ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਿਹਤ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਨਤਮ ਕਾਢਾਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਮਧੂਮੇਹ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਮੈਰੀ ਕਿਊਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਥਿੰਗ ਇਨ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਫੀਅਰਡ, ਇਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਟੂ ਬੀ ਅੰਡਰਸਟੂਡ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਸੋਚ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਧੂਮੇਹ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਮਧੂਮੇਹ ਦਿਵਸ ਹਰ ਸਾਲ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮੀ ਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅਨਵਰ ਖਾਨ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਮਧੂਮੇਹ ਦਿਵਸ, ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕ ਕਦਮ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 14 ਨਵੰਬਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਡੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਕਿਡਨੀ, ਦਿਲ, ਨਸਾਂ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰ ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਅਨਵਰ ਖਾਨ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਨੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। थैंक यू। सत श्री अकाल सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं डॉक्टर अनवर खान हूँ। आज हम डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे, ये वर्ल्ड डायबिटीज़ डे पे। बेसिकली जो हम डायबिटीज़ जिसे नॉर्मल उसमें जानते हैं वो उसे कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। अब आप कहेंगे टाइप 1 क्या होती है? यस, तो 2 तरह की डायबिटीज़ होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। लेकिन जो आम तौर पे जो देखा गया है एडल्ट पॉपुलेशन में और ग्रोन अप पर्सन्स में, वो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है वो ज़्यादातर बच्चों में होती है, शुरू में होती है। उसका कारण है ऑटो इम्यून डिजीज़। उसमें कुछ तरह की बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं जो कि अपने ही पैनक्रियाज को, जो कि इंसुलिन सिक्रीट करते हैं, जिसे आइलेट सेल कहते हैं, उसको डैमेज कर देती है। तो वो दूसरे टाइप की बीमारी होती है, उसमें इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है। लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है उसमें इंसुलिन की सिक्रीशन में कोई कमी नहीं आती है, रादर इंसुलिन सिक्रीशन ज़्यादा होता है लेकिन उसका यूजेज नहीं हो पाता। तो बॉडी उसको इंसुलिन को यूज़ नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो डायबिटीज़ होती है। तो इसे टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? नहीं, जन्म से नहीं होती है। ये भी कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ वो होती हैं जिसमें कि बॉडी रिएक्शन करती है किसी एंटीजन के अगेंस्ट में, और वो जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो अपने ही सेल्स को, अपनी ही बॉडी के ऑर्गन को डैमेज करने लगती हैं। कई तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, टाइप 1 डायबिटीज़ है, और बहुत सी जो है गठिया की बीमारी हैं, वो ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं। जैसे बड़ी कॉमन है, जैसे हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है ना, थायराइड की डेफिशिएंसी होती है, उसे हाशिमोटो डिजीज़ कहते हैं, वो भी एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। तो बॉडी अपने आप ही जो है कुछ गलत तरीके से, यू कैन से, नॉर्मली तो बॉडी अपने आप के अगेंस्ट में नहीं बनाएगी, लेकिन कुछ एंटीजन ऐसे होती हैं वो बॉडी के एंटीजन से मैच कर जाते हैं, तो बाय मिस्टेक वो एंटीबॉडीज जो है ना इसको डैमेज करती हैं। तो ये जन्म से नहीं होती बीमारी, बाद में ही होती है। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ?
हेरिडिटरी नहीं कहते हैं, लेकिन कुछ जीन्स जो कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं कुछ लोगों में कि उसमें होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जेनेटिक नहीं कहेंगे, लेकिन अगर फैमिली में है डिजीज़ तो इसका मतलब जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन है, मतलब जेनेटिकली हमें ससेप्टेबल हूँ कि ये बीमारी हो सकती है मुझे, लेकिन जेनेटिक नहीं है, प्योर जेनेटिक नहीं है। कुछ मतलब प्रतिशत जड़े हाँ, अगर किसी फैमिली हिस्ट्री में है तो आपको होने के चांसेस ज़्यादा है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਠਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਠਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਵੇਂ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ नहीं ਹੁੰਦਾ। देखिए, मीठा को हम सोचते हैं हम खाली जो है ना, जो शुगर है वो ख़राब चीज़ है। तो मीठे का मतलब जो होता है, जो साइंटिफिक लैंग्वेज में होता है, वो होता है कार्बोहाइड्रेट। जी। कार्बोहाइड्रेट में शुगर भी आती है, स्वीट्स भी आती हैं, जो हम रोटियां खाते हैं कनक की वो भी आती हैं, जो राइस है वो भी खाते हैं। तो ये तो बेसिकली हमें देखा गया है कि कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन जो है ना वो ज़्यादा है इंडियंस में या एशियन कंट्रीज़ में, लोगों में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट भी कई तरह के होते हैं कि एक तो वो होते हैं कि कार्बोहाइड्रेट खाया वो एकदम से ब्लड शुगर को बढ़ाते हैं जी, तो उसे कहते हैं हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स कार्बोहाइड्रेट। कुछ होते हैं कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं जो कि हम खा लेते हैं लेकिन शुगर उतनी नहीं बढ़ती जी, तो उसे लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो एकदम से शुगर बढ़ाते हैं उससे क्या होता है, एकदम से शुगर बढ़ती है तो एकदम से बॉडी में इंसुलिन सिक्रीशन होता है, एकदम से इंसुलिन सिक्रीशन होता है, उसकी वजह से बॉडी में खराबी आती है जी, वो खराब होता है। तो वो कार्बोहाइड्रेट जिससे कि एकदम से शुगर बढ़ती है, जैसे प्लेन शुगर हो गई, जैसे कनक की रोटियां हो गई या राइस हो गया, इनसे शुगर एकदम से बढ़ती। इसीलिए आजकल रिकमेंड करते हैं कि कनक की जगह पे हम अगर मिलेट्स खाएं तो वो ज़्यादा अच्छे हैं। तो अगर हम मिलेट्स खाएंगे वो लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स होते हैं, वो शुगर एकदम से नहीं बढ़ती। शुगर चाहिए होती है बॉडी को लेकिन वो एकदम से शुगर के स्पाइक नहीं आते, इसलिए वो अच्छी होती है, उसमें इंसुलिन सिक्रीशन उतना नहीं होगा, इसलिए बॉडी को नुकसान नहीं करता जी। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੰਡ ਖਾਓਗੇ, ਚੀਨੀ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੜ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸ਼ੱਕਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਠੀਕ रहेगा। ये कि कितनी हद तक ठीक नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, क्वांटिटी इंपॉर्टेंट होती है जी, आप चाहे खंड खाएंगे, शुगर खाएंगे, चीनी खाएंगे या रोटियां खाएंगे या ब्रेड खाएंगे, सभी से शुगर बढ़ेगी। आपको ये देखना कि कितनी क्वांटिटी मुझे खानी है, तो क्वांटिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें एकदम से ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा शुगर बढ़ेगी, जी, कम खाएंगे तो कम शुगर बढ़ेगी। तो आप स्वीट भी ले सकते हैं, अगर आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो स्वीट ले सकते हैं। आपको ये देखना है उसमें कितनी कैलोरीज है, हमें ये देखना चाहिए। जैसे सपोज करो हम जैसे किसी मार्केट में जाएं, हमें पॉकेट में हमारे हैं 10,000 रुपये हैं, तो हम देखेंगे जो सामान खरीदें वो 10,000 में आ जाए। अगर हम सामान जो खरीद लेंगे 50,000 का, हमारे पॉकेट में 10,000 का है, तो हमें नुकसान ही होगा ना। 40,000 रुपये का तो जो है हमें लोन ही लेना पड़ेगा। तो वो बॉडी को जो है ना जितनी रिक्वायरमेंट है कैलोरीज की उतना ही जो है ना लें, तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो उससे कोई ना तो वेट में इफेक्ट पड़ेगा, ना ही आपके उसमें किसी भी बीमारी लाइफस्टाइल डिजीजेज उसमें फ़र्क पड़ेगा। तो ये देखना चाहिए कि हमें कितनी कैलोरीज रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग का। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਫਰੈਕਟੋਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ? देखिए, फ्रक्टोज से भी जो है ना, फ्रक्टोज भी एक तरह की शुगर होती है, लेकिन फ्रक्टोज डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं होती है। फ्रक्टोज बॉडी में जाके अंदर बॉडी में मेटाबोलाइज होती है, उसके बाद में फिर वो जो पाथवे होता है ग्लाइकोलिसिस कहलाता है, उसमें फिर से फ्रक्टोज जो है ना उसमें यूज़ हो जाती है। तो फ्रक्टोज ऐसा नहीं है कि फ्रक्टोज के साथ में हम जो है फ्रूट्स लेते हैं उसमें हम खाली फ्रक्टोज के लिए नहीं लेते हैं, उसमें जो फाइबर्स हैं, जो उसमें विटामिन्स हैं, जो इसमें मिनरल्स हैं, उसकी वजह से लेते हैं। तो खाली फ्रक्टोज की वजह से फ्रूट नहीं खाते। तो फ्रक्टोज अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो वो भी नुकसान करेगा। तो अगर ज़्यादा फ्रक्टोज करेंगे तो उसमें फैटी लिवर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जी, तो और फ्रूट्स भी खाएं जो कि जिसमें कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, ज़्यादा मीठे फल हैं, जी, तो उनको भी मॉडरेट क्वांटिटी में लाएं। फ्रूट्स को कभी भी खाने की तरह नहीं खाना चाहिए। अच्छा, फ्रूट्स इज ए एड ऑन,
हाँ, ਖਾਣੇ का रिप्लेसमेंट नहीं है फ्रूट। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਮਿਥਸ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਸਰ? देखिए, इसमें जो होता है डिफरेंट स्टेजेस में होती है बीमारी। अगर शुरू की अर्ली स्टेज में है तो अगर आप रिस्क फैक्टर मॉडिफाई करते हैं तो बहुत से पेशेंट होते हैं इसमें डोज घट सकती हैं या बंद भी हो सकती हैं। डोज मॉडिफिकेशन जो सबसे पहला तो जो कंट्रोल होता है कि आपका अपना बॉडी वेट, जी, जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है यूजली जो ओबेसिटी एसोसिएटेड होती है साथ में होती है, तो आप वेट घटाएंगे अपना। दूसरी चीज़ कैलोरीज आप कंज्यूम जितनी करते हैं उसको घटाएंगे। हम कैलोरीज जब कैलकुलेट करते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, उसमें कितनी कैलोरीज है। बहुत सी चीज़ें खाने होते हैं, अगर उसमें फैटी फूड है तो फैटी फूड में कैलोरीज ज़्यादा होंगी, तो वो कम क्वांटिटी खाएंगे फिर भी आपको कैलोरीज मिल जाएगी। कार्बोहाइड्रेट है उसमें कितनी कैलोरीज है, प्रोटीन है उसमें कितनी कैलोरीज, जो भी आप फूड आइटम लें उसमें देखें कैलोरीज आपकी। देखिए डेली जो है ना, डेली आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट किसी। एक सीडेंट्री वर्कर है जो कि कुछ नहीं करता, या कोई भी एनी वेरी मेल और फीमेल, तो उसके लिए 2000 कैलोरीज काफ़ी है। लेकिन कोई हार्ड वर्किंग पर्सन है तो उसके लिए 3000 कैलोरीज भी ज़रूरत हो सकती है। तो ये देखना आपका लाइफस्टाइल क्या है, कितनी यूज़ कर रहे हैं आप, तो उतनी कैलोरी लें जितनी यूज़ करें, तो उससे डिजीज़ को मॉडिफाई किया जा सकता है। तो अभी जो है ना, जो ड्रग्स भी हैं, नई जो ड्रग्स हैं, वो खाली डिजीज़ को कंट्रोल ही नहीं करती बल्कि डिजीज़ को मॉडिफाई भी करती हैं। अच्छा। तो शुरू की कंडीशन में डोजेस घट सकती हैं या बंद भी हो सकती हैं, लेकिन लेट जो है ना डिजीज़ के अगर वो कहें तो उसमें ज़्यादातर में जो है ना ट्रीटमेंट लेना पड़ता है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, इंसुलिन ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ है, ये सही है? देखिए, जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है वो इंसुलिन से मैनेज नहीं की जाती है उसमें, क्योंकि इंसुलिन की डेफिशिएंसी ही नहीं है। तो शुरू की कंडीशन में जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है उसमें जो है ड्रग्स हैं, दूसरी ड्रग्स हैं जो कि इंसुलिन का यूटिलाइजेशन बढ़ाएं, वो उस तरह के देते हैं। आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताएंगे, वेट रिडक्शन बताएंगे, डाइट में चेंजेस बताएंगे, और कुछ मेडिकेशंस होंगी जो कि इंसुलिन का यूजेज बढ़ाती है, क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी इंसुलिन है। लेकिन लेट स्टेज में, जबकि सपोज करें किडनी डैमेज हो गया या और दूसरी प्रॉब्लम हो गई, आईज में प्रॉब्लम आ गई, बाय दैट कंडीशन जो है ना, उस कंडीशन में क्या होता है कि शुगर घटने लगती है। उस टाइम पे जो दवाइयाँ होती हैं वो वाली जो है उसकी भी नुकसान ज़्यादा होते हैं, साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं। उस कंडीशन में इंसुलिन रिक्वायरमेंट होती है, बट शुरू की कंडीशन में इंसुलिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। शुरू में तो खाली मेडिसिन से ही मैनेज होता। सर, गर्भ अवस्था के दौरान प्रेगनेंसी के समय जेस्टेशनल, जी हाँ, जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है, वो जो होती है वो एक बॉडी की रिएक्शन होती है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से होती है। वो ज़्यादातर देखा गया है कि सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के टाइम पे ज़्यादा होती है, बट किसी टाइम पे भी हो सकती है। ये ज़्यादातर देखा गया है कि अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वेट गेन ज़्यादा हो गया है तो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो बट किसी को भी हो सकती है। लेकिन ये जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है यूजली प्रेगनेंसी जब डिलीवरी होती है उसके बाद में खत्म हो जाती, ठीक हो जाती है, लेकिन ज़्यादा खतरनाक नहीं होती। लेकिन जो है ना, ऐसे पेशेंट्स को केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि अगर अगर वेट उनका रिड्यूस नहीं करेंगे बाद में, तो ऐसे पेशेंट को लगभग 50% चांसेस होते हैं बाद में कि टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाए। अच्छा जी, हाँ, तो इनको थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, जेकर मां नूं शुगर होवे तां की बच्चे नूं भी हो सकती है? नहीं, बच्चे को जो है ना शुगर का नहीं होता है। अगर माँ को शुगर है तो बच्चे को शुगर नहीं हो, लेकिन बच्चे में कुछ चेंजेस होते हैं कि जो है बच्चे का जो है ना साइज़ बड़ा होता है और जो है ना बच्चे का वेट ज़्यादा होता है, जो है अगर डायबिटिक हो जाती है, चाहे जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो चाहे नॉर्मल डायबिटीज़ हो, तो उसमें जो है ना साइज़ होता है। लेकिन ये चीज़ ट्रांसफ़र नहीं होती कि उसको डायबिटीज़ बच्चे को भी हो जाएगी, मतलब ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਲੱਛਣ, ਡਾਇबिटीज ਦੇ ਲੱਛਣ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ? नहीं, एक ही से होते हैं। इसमें जो है जो ज़्यादातर जो डायबिटीज़ कहलाते हैं, जैसे कि पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, ये 3 बड़े कॉमन है। वो इसलिए कहते हैं कि अगर थर्स ज़्यादा लगेगी, पानी ज़्यादा पिएंगे, पेशाब ज़्यादा आएगा, और ज़्यादातर बहुत से लोगों में वेट रिड्यूस भी हो सकता है क्योंकि ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं हो रहा। बहुत से लोगों में जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है उसमें जो है ना वेट पहले से ही ऑलरेडी ज़्यादा होता है, ये रीज़न है, मेन रीज़न है, तो उसमें ओवर वेट भी हो सकता है। बट ये सिम्टम्स शुरू में होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसमें ये सिम्टम्स बड़े माइल्ड होते हैं, तो वो जब तक कि ब्लड शुगर चेक नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलता।
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਣਾਅ ਹੋਣਾ, ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਮੀ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ? जी हाँ, जो होता है जब भी आप स्ट्रेसफुल होते हैं, आप नींद नहीं लेते हैं, तो बॉडी में एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, वो बढ़ जाता है। तो जब भी कॉर्टिसोल जो है चाहे बॉडी के अंदर बन जाए या ऊपर से हम कोई स्टेरॉइड लेते हैं, जैसे बहुत सारी मेडिसिन में दवाई दी जाती है, स्टेरॉइड होती हैं ड्रग, वो देते हैं तो उससे शुगर बढ़ जाती है। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਘਟ ਜਾਣਾ ਕੀ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ? हाँ, शुगर का घट जाना किसी भी टाइम पे, चाहे दिन में हो चाहे रात में हो, ख़तरनाक हो सकता है। तो उसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। तो हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम जो भी डायबिटिक हैं उनको मालूम होना चाहिए, जैसे अचानक एकदम से भूख लगना, अचानक घबराहट होना, दिल की धड़कन बढ़ जाना, पसीना आना, ये सारे सिम्टम्स हैं कि जो है ना शुगर घट रही है। तो इमीडिएटली सबसे पहले तो ब्लड शुगर चेक कर लें हैं अपना। अगर ब्लड शुगर कम है तो इमीडिएटली कोई भी आप जो है ना लिक्विड ले सकते हैं, चाहे मिल्क ले सकते हैं, चाहे बिस्किट ले सकते हैं। ग्लूकोज का जो है ना वो आप जो है लेंगे तो डायरेक्टली फॉरन इमीडिएटली रिलीफ मिल जाता है। तो ग्लूकोज का भी कोई भी, चाहे बिस्किट ले लें चाहे ग्लूकोज वैसे ही ले लें, एनी फॉर्म। कुछ भी हाँ, जो है ना, हाँ, वो फिर उस टाइम पे वो लेनी है जो इमीडिएटली एब्जॉर्ब हो जाए। फिर आप उसमें ज़्यादा फ्रूट लेंगे तो फ्रूट टाइम लगेगा, तो उस टाइम पे आप बिस्किट लेंगे या ग्लूकोज का सिंपल जो है पाउडर लेंगे, वो जल्दी असर करेगा। नहीं तो फिर इंट्रावीनस देना पड़ता है। ये ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰੇਲੇ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਣ ਨਾਲ ਜਾਮੁਨ, ਮੇਥੀ, ਸ਼ੂਗਰ, ये शुगर मतलब मेथी है ना, ये सब चीज़ें डायबिटीज़ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। देखिए ये चीज़ें जो है ना बहुत सी आयुर्वेदिक या उसमें रिकमेंड करते हैं। बेसिकली ये सब चीज़ें क्या हैं कि ये सब वो चीज़ें हैं जिसमें कि कैलोरीज नहीं है, फाइबर्स है। तो जो भी जो है ना जो फाइबर डाइट होती है वो आपको शुगर में हेल्प करेगी। वो जो है ना आपका जो है ना शुगर एब्जॉर्प्शन को भी कम करती है, फैट एब्जॉर्प्शन को कम करती है, गट बैक्टीरिया को इम्प्रूव करती है। तो बहुत सारी जो होती है बॉडी के जो लाइफस्टाइल जो चेंजेस बताते हैं वो डाइट का इम्पोर्टेंट होता है। डाइटरी फाइबर्स जिसे कहते हैं वो चीज़ लेना चाहिए। उससे जो बॉडी में जो लार्ज इंटेस्टीन होती है उसमें अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। कुछ तो ख़राब बैक्टीरिया कहलाते हैं, कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, जिससे जो मतलब गुड बैक्टीरिया कहलाते हैं। वो बॉडी में ऐसे हार्मोन रिलीज़ करते हैं, ऐसे अंदर से सिक्रीशंस बॉडी को जो है सिग्नल देते हैं रिलीज़ करने के, जिससे कि हेल्थ अच्छी होती है। तो इनडायरेक्टली ये चीज़ें हेल्प करती हैं, बट ये कोई कंट्रोल मेजर नहीं है। तो कंट्रोल मेजर आप जो है ना कोई भी जो है ना, जैसे आप डाइट में मॉडिफिकेशन कर देंगे, हाई फाइबर डाइट लेना शुरू कर दें, इन्हीं चीज़ आप जैसे अगर करेला खाएंगे तो करेला खाने के बाद में आपकी एपेटाइट वैसे ही थोड़ी कम हो जाएगी। आपको उसके खाने के बाद में और दूसरी चीज़ खाने का ज़रूरत नहीं। तो इनडायरेक्टली इट इज़ हेल्पिंग कि आपकी एपेटाइट डिक्रीज कर दी। तो आप ले ही नहीं रहे कैलोरीज, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प इन इम्प्रूविंग डायबिटीज़। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ, ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸੈਰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਾਇबिटीज ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ? जी हाँ, देखिए कसरत करने से और जो है ना डाइट, देखिए डाइट इनटेक और एक्सरसाइज दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज करने से 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो जो बॉडी में ग्लूकोज है उसका यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि जब आप मसल यूज़ करेंगे तो मसल को चाहिए ग्लूकोज, तो मसल जो है ना वो बॉडी के ग्लूकोज को यूज़ करेगी। दूसरी चीज़ जो है ना बॉडी में जो है ना मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव हो जाएगी, उससे कि वेट रिडक्शन में हेल्प मिलती है। तीसरी चीज़ बॉडी में और जो है कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ जो मिलती है वो हेल्प होती है कि उससे कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन इंप्रूव करेंगे, तो बॉडी का जो है ओवरऑल जो है ना बॉडी के फंक्शंस इंप्रूव करते हैं। तीसरी चीज़ जो होती है बॉडी में अच्छा आप यू फील गुड, आप अच्छे फील करते हैं ना, तो अच्छे हार्मोन होते हैं बॉडी में, डोपामीन जो कहलाते हैं, तो वो इंक्रीज होता है, देन यू फील गुड। तो जब आप अच्छा फील करने लगेंगे तो बॉडी उसी हिसाब से मॉडिफाई करती है। जब आप डिप्रेस होते हैं तो कॉर्टिसोल ज़्यादा सिक्रीट होगा, तो आप डिप्रेशन में तमाम चीज़ें होंगी, आप खाएंगे भी ज़्यादा, आपका वेट गेन भी होगा, डिस्टर्ब स्लीप भी होगी। जब आप अच्छा फील करेंगे तो आप हर चीज़ें जो है बॉडी में उसी तरह ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਤੋਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਆ ਨਾ, जी हाँ बिल्कुल खुश रहना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਡਾਇबिटीज ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਮਰੀਜ਼ एक नॉर्मल खुश ते लंबी जिंदगी जी सकता है? बिल्कुल लंबी जी सकता है। आपको डायबिटीज़ हो, चाहे टाइप 1 हो चाहे टाइप 2 हो, अगर आप उसको जो है ना अच्छी तरह मैनेज करते हैं, जो है ना सीरियसली मैनेज करते हैं, तो उसके आप कॉम्प्लिकेशंस उनको जो है डिले कर सकते हैं। जो है ना मेन कॉम्प्लिकेशन जो डायबिटीज़ के होते हैं वो कार्डियोवैस्कुलर होते हैं,
और जो है ना जो आर्टरीज होती हैं उसमें ब्लॉकेज होने का चांस होता है, किडनी जो है डैमेज होने का चांस होता है, आइज़ डैमेज होने का चांस, ये कॉमन है जो कि सीरियस है। तो इन सभी को जो है अगर आप डायबिटीज़ अच्छी कंट्रोल करेंगे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे, तो आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं, आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, एक जैसे अगर आप देखेंगे ना, एक पाकिस्तान का एक बड़ा फास्ट बॉलर थे, बहुत ही अच्छे फास्ट बॉलर, वसीम अकरम, अभी आप सुना होगा, बहुत ही बढ़िया बॉलर थे वो टाइप 1 डायबिटीज़ है उनको। अच्छा। हाँ। तो वो सोचो कि डायबिटीज़ के साथ में जो है ना वो अपना लाइफस्टाइल गेम भी खेल रहा है। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जो कि डायबिटीज़ है और वो बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि डायबिटीज़ की वजह से आपका लाइफस्टाइल आप जो है ना ख़राब हो जाएगा। प्रॉब्ली ये अगर आप उसको ठीक तरह से मैनेज करें तो मैनेज करिए तो जिंदगी बहुत जी हाँ चल सकती है। हाँ, आप नॉर्मल लाइफ जो है ना नॉर्मल की तरह। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਅਨਵਰ ਖਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇहद ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਅਨਵਰ ਖਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਮਧੂਮੇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ, ਨਿਯਮਤ ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਸਵੈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਮਧੂਮੇਹ ਦਿਵਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਥੀ। ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਹਾਂਗੇ, ਮਧੂਮੇਹ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵੀ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਪਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ। ਕੈਂਸਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਮਰ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਨਤ ਪੜਾਵਾਂ ਤੇ ਨਿਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਚਣ ਦੀ ਦਰ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੈਂਸਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਿਵਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜਾਨਾਂ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ, ਨਿਯਮਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੂਚਿਤ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਿਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੈਂਸਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਿਵਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਹਰ ਸਾਲ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਡਮ ਮੈਰੀ ਕਿਊਰੀ, ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਤੇ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਡੀਅਮ ਤੇ ਪੋਲੋਨੀਅਮ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੋਜ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਓਨਕੋਲੋਜੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਬੋਝ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਵੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੈਂਸਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਿਵਸ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਜਲਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਹਸਪਤਾਲ, ਕੈਂਸਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕੈਂਸਰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੈਂਪ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦਿਨ ਇੱਕ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਨਿਦਾਨ ਬਚਾਅ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਸਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੋਖਮ ਕਾਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਛੱਡਣ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਕੈਂਸਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਾਗਤਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲੀ ਚਰਚਾ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਨਿਮੋਨੀਆ ਦਿਵਸ ਹਰ ਸਾਲ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੋਕਥਾਮਯੋਗ ਅਤੇ ਇਲਾਜਯੋਗ ਕਾਰਨ ਨਿਮੋਨੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਦਿਨ ਟੀਕਾਕਰਨ, ਸਹੀ ਪੋਸ਼ਣ ਤੇ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੇ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਮੋਨੀਆ ਤੋਂ ਬਚਾਅ, ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਨਿਮੋਨੀਆ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਫੰਜਾਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਘ, ਬੁਖਾਰ, ਠੰਡ ਲੱਗਣਾ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਬੱਚੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਚੰਗੀ ਸਫਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਸਹੀ ਪੋਸ਼ਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1986 ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸੰਖੇਪ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਵ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 1986 ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 1988 ਵਿੱਚ ਮਤਾ 43/61 ਅਪਣਾਇਆ, ਜੋ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਫ਼ਤਾ ਹਰ ਸਾਲ ਉਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 11 ਨਵੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ। ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 45ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲ ਭਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਉਪਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਚਿਕਾ ਪੂਜਾ ਟੋਹਾਨੀ, ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ।